اور آج کا پرابلم یہی ہے، کہتے ہیں نا جو دین کا تکبر ہے نا وہ مال کے تکبر سے بہت زیادہ ہے. میں نمازی، میں حجابی، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر. ہمارے اندر یہ جو تکبر آ گیا ہے، یہ سپیریورٹی کمپلیکس، یہی تو ابلیس کا تھا نا کہ میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم سب کس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بھی بہتر ہیں؟ اور وہ کہاں سے آتا ہے وہ کانفیڈنس کہنے کے لیے کہ میں کسی سے بہتر ہوں؟ میں کیا جانتی ہوں؟ ہو سکتا ہے کل یہ انسان توبہ کر لے، میرے سے آگے نکل جائے. میں کون ہوں کسی کو کہنے والی؟ میرا کام ہے دین کی دعوت کو آگے لے کے جانا. میری پاس جو نالج ہے چھوٹی موٹی میں شیئر کروں گی. بھائی میرے بولنے سے کسی نے 2 رکعت نفل بھی پڑھ گیا تو میری تو مغفرت ہو گئی نا، میری تو آخرت بن گئی. میرے اندر 10 پرابلم ہو گئے، لیکن میں اچھی باتیں کروں گی. دیکھو اچھی باتیں، جو چیز آپ زیادہ بات کرو گے نا دل اس سے ہی متاثر ہوتا ہے. اب میں آپ سے یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کی باتیں کروں گی، پیسے کیسے کمانا ہے، بزنس میں کیسے آگے جانا، تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، میرے کو بھی ایسی بزنس کرنا ہے، میں بھی یہ طریقہ اپناؤں گی، میں بھی یہ طریقہ ہے نا. اب میں آپ کو کوئی کھانے کی ریسیپی بتاؤں گی 1 گھنٹے تک، تو آپ بھی سوچو گے گھر جا کے مجھے یہی کٹلیٹ بنانا ہے، مجھے یہی فلانا بنانا ہے. انسان کا دماغ ہی ایسا ہے. اب وہی چیز جب میں آپ کو اچھی باتیں کروں گی دین کی، آپ کے اندر بھی آئے گا نہیں مجھے بھی جا کے نماز پڑھنی ہے، نماز وقت پہ ادا کرنا ہے. قبر میں سب سے پہلے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ کی نماز. سب سے پہلے جو آ کے آپ کے فیس کے پاس کھڑی ہو جائے گی وہ آپ کی نماز ہے. روزہ، زکوٰۃ، صدقہ اللہ نے کتنا آسان کر دیا. اور عورتوں کے لیے تو جنت سب سے آسان ہے، سب سے آسان. مردوں سے بھی ایزی ہے عورتوں کو جنت میں جانا. کہتے جو عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کے لیے سیدھا جنت. اور کوئی چھٹا لا ہی نہیں ہے، اتنا آسان ہے. پر جہنم میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عورتوں کی. اور سب سے زیادہ گناہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ گناہ کیا ہے اتنی ساری عورتوں میں؟ ان کی زبان، اخلاق. یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں نا، یہی چیز ہمیں جہنم میں پھینکے گی. اس چیزوں سے بچے. بہت گندی بات ہے، بہت گندی بات ہے. کہتے ہیں نا ہم اگر کسی انسان کی عزت کسی ایسی جگہ پہ نکالتے ہیں جہاں پہ اس کی عزت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عزت پھر ایسی جگہ نکالیں گے جہاں پہ آپ کی عزت ہے. یہ نا بھائی اب کبھی کسی کو بولو گے تو کہیں گے نہیں پہلے تو یہ کیا تھا، 10 سال پہلے وہ کیا تھا. وہ نہیں، اللہ سے آپ نے توبہ کر لی، بات ختم. اس کے بعد اگر آپ نے ایسی کوئی گندی چیز نہیں کی ہے تو آپ اللہ کی نظر میں نیک ہو. آپ کو بھی تو پتا ہے نا آپ کتنی نیک ہو، آپ کی سوچ، آپ کیا کرتے ہو یہ آپ کو خود کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں کسی نیک عورت پہ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ قیامت کی صبح تک، اسباب غیبی طور سے بتا رہی، مطلب اللہ کا غصہ اس پہ کہ اگر وہ قیامت کی صبح تک بھی تہجد میں اپنا سر رکھے گا زمین پہ تو بھی اس کے لیے جہنم ہے. تو کسی پہ ہم تہمت کیوں لگائیں؟ کیوں کسی کے لیے کچھ بولیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہم اپنی جنت بنائیں نا بھائی، اور محنت کریں دوسروں کا زندگی سنوارنے کے لیے؟ کیوں یہ سب کام کرنا ہے؟ تو بس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قرآن کو وقت پہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد دیکھیے ایک ہر سورہ کا ایک، فجر بعد آپ سورہ یاسین پڑھے، ظہر بعد سورہ فتح پڑھے، عصر بعد سورہ نبا پڑھے، مغرب بعد سورہ رحمان، سورہ واقعہ پڑھے، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھے. یہ تعویذوں کے باباؤں کے چکر میں کم رہے. رزق اللہ آپ کو سورہ واقعہ سے اللہ کا وعدہ ہے. جس کسی نے بھی اللہ سے دعا کر کے سورہ واقعہ پڑھا مغرب میں، اللہ اس کے لیے حلال رزق کے، وسیع رزق کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. بات ختم. تو ہمیں پھر جا کے پوری پڑھا کر تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس سے پیسے نہیں آتے. یہ سب باتیں ہیں، یہ سب آپ کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں. اللہ سے رزق مانگے، حلال مانگے، ساتھ ہی ساتھ وسیع رزق مانگے. وسیع رزق ہے جس کے دیکھو حلال کی روزی کا بھی قیامت کے دن ہمیں سوال جواب ہے. وسیع رزق یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی جس روزی کا حساب کتاب نہ ہو تو ہم اللہ سے، کیونکہ ہم دیکھو حلال بھی کماتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم سے فضول خرچے ہوتے ہیں نا. اب جیسے میرا بیبی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میں کبھی کبھی بہت زیادہ فضول کر رہی ہوں. میرے شوہر تو 5-6 کپڑے سے اوپر ایکسٹرا منگا دوں تو کہتے ہیں کہ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. میک اپ منگا لوں اس کا بھی جواب. میں نے کہا ارے آپ تو مطلب کچھ ہی نہیں کرنے بتا رہے، ہر چیز کا جواب انسان ڈر سے کچھ نہ کرے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو بس یہ تو چھوٹی، جب آپ
हस्बैंड वाइफ के अंदर जब दीन वाली बातें होती है, दीन से रोक टोक होती है, तो ज़िंदगी ही अलग होती है, ज़िंदगी में एक अलग खुशी होती है। तो आप कोशिश करें, जितनी मेरी बहनें भी यहाँ पे हैं, आप कोशिश करें। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, जब लड़कियाँ कहती हैं हमें दाढ़ी वाला शौहर नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी सैड। कहते हैं जिस इंसान के चेहरे पे दाढ़ी होगी, सुन्नत की दाढ़ी होगी, कयामत के दिन उसका चेहरा चांद जैसा चमकेगा, जिसने इस दुनिया में दाढ़ी रखी है। क्यों? फिर हम कहते हैं अरे हाँ ये वाली एक्ट्रेस का ड्रेस पहना है, ये वाले एक्टर का, ये लड़का वैसा हेयर कट किया है। हाँ क्यों? अप्रिसिएशन। अल्लाह क्या कहते हैं कि मेरी नबी की देखा देखी भी करोगे ना तो भी पास हो। अल्लाह ने नबी की जो शक्ल बनाई है, जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने वैसी बनाई है। तो आप सोचिए जब आप उनकी देखा देखी करोगे तो हम कैसे कह सकते कि ये चीज़ ऐसी है वैसी है, नौज़ बिल्लाह, ये क्यों रखे, वो क्यों, बोलने में डर लग रहा है। तो क्या अल्लाह ने अपने सबसे महबूब की शक्ल ऐसी बनाई ना जिसे अल्लाह पसंद करता है? तो हम कोशिश करें कि हम अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने डैडी को जितना हो सके हम दावत देते रहें। खूबसूरती के साथ इज्जत है, जो मैंने देखा है, स्ट्रेट खड़े थे और इतनी हवा जा सकती थी, एक इंसान आ सकता था, इतना फासला था। और पहले यही दोस्त ऐसे होते थे, फोटो लेने खड़े तो कंधे पे हाथ रख देते थे जैसे कोई उनकी प्रॉपर्टी हो। हम हमेशा नहीं आए तो दोस्त है, ऐसी नियत नहीं है, ये नहीं, बट नहीं, अल्लाह ने मना कर दिया, बात खत्म। तो आप सोचिए, हिजाब आपके लिए इज्जत लाती है, इसके अलावा कुछ नहीं लाती। मैं तो कहती हूँ जैसे मेरी दोस्त है, मेरी कज़न है, वो स्कूल में टीचर है, तो वो कहती है मेरे स्कूल में जब हम लोग गए ना, मुस्लिम स्कूल, हिजाब पहनने नहीं देते, मुस्लिम स्कूल, मुस्लिम टीचर्स को हिजाब पहनने नहीं देती। तो उन्होंने एट द एंड ऑफ इट, तब मैंने उसको कहा कि काम करो, काम छोड़ दो, ऐसे स्कूल में जाना ही क्यों जिससे आखिरत खराब हो, है ना, इनको जो करना है तो आप छोड़ दो। उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ टीचर्स लोगों ने मिलके वहाँ पे एहतजाज किया कि भाई हिजाब तो पहनना पड़ेगा। अच्छी टीचर्स स्कूल छोड़ के जाने लगी, तो उसके बाद अब उन लोगों ने इसको हिजाब अलाउ कर दिया। देखिए कितना आसान हो गया, किसी ने कुछ किया, एक हलचल की, तो अल्लाह ने उसको पॉसिबल किया। क्यों? क्योंकि इसे शरीयत को आगे रखा कि मैं अल्लाह को नाराज़ करके ये जॉब ही क्यों करूँ मैं। तो अल्लाह ने क्या किया, वो एक लड़की के जरिए बाकी जिनको अंदर हिम्मत नहीं थी, बेचारे थोड़े कमज़ोर थे, नहीं बोल पाए, अल्लाह ने उनके लिए भी रास्ते खोल दिए। तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है, हमें सिर्फ मेहनत करनी। जहाँ हमने सोचा ना कि मुझे अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है, अल्लाह देखिए आपके सारे दरवाजे ऐसे खोलेगा, आपके गुमान में भी नहीं होगा। मेरे तो कितनी चीज़ें गुमान, मैं तो आज कभी कभी अपनी लाइफस्टाइल में देखती हूँ ना, कुछ चीज़ें जो मेरे साथ होती है। मैं अल्लाह के घर पहले साल में एक बार जाया करती थी, उसके एंड में तो 2 साल में गई नहीं। अब कितने लोग बोलते हैं हाँ पैसा है इसलिए बार बार उम्रा चले जाती है, पैसे की वजह से जाती है। एंड मैं सोचती हूँ कौन है ये गधे लोग, पैसे की वजह से आप कभी उम्रा नहीं जा सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं 2017 उम्रा नहीं गई, मैं 2017 उम्रा नहीं गई, नहीं 17 गई, 2018 उम्रा नहीं गई, 2019 उम्रा नहीं गई, मैं 2020 उम्रा नहीं गई, 20 में तो लॉकडाउन ही लग गया था, मैं नहीं गई। पैसे तो कभी भी थे मेरे पास, जाना भी था। ये साल मेरे अब्बू को हज पे लेके जाना था, पैसे तो थे मेरे पास, नहीं हुआ मेरे अब्बू का, नहीं जा पाए। तो पैसा आपको कहीं नहीं लेके जाता जब तक अल्लाह की तरफ से लब्बैक ना हो। इसीलिए मेरे शौहर ने मुझे बताया था, मैं आप सबको बताती हूँ, हर अजान के बाद, जिसे अजान के बाद की दुआ आती है वो पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो अभी अगर पहुंच भी गई ना उम्रा, अल्लाह के घर में माफ़ी दुआ मांगना शुरू कर देती हूँ, मुझे जल्दी वापस बुलाना, मुझे नेक्स्ट टाइम और जल्दी आना है, मुझे इधर ही रख ले, मुझे भेजी मत, तो आप जितना अल्लाह से मांगो। जब मुझे कुछ लोग कहते तुम तो इतनी बार जाती हो, तो मैं मस्ती में कहती हूँ, मैंने कहा शायद तुम उतनी शिद्दत से दुआ मांगती नहीं हो, शायद मेरी शिद्दत आपसे ज़्यादा हो, इसीलिए अल्लाह बुलाता हो। तो अल्लाह का क्या फैसला है हम नहीं जानते, है ना, हमें बस अल्लाह से मांगते रहना। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अल्लाह के घर में गए तो कोई आप अल्लाह की नज़र में कम काबिल कबूल हो, नहीं, अल्लाह ने सबके लिए सब तय कर दिया है। पहले आप अपने घर में नमाज को वक्त पे करो। हाँ, लॉकडाउन था तो कितने मुसलमानों ने अपनी मस्जिद निकोली, मस्जिद में कोई परिंदा भी मर नहीं
मर रहे हैं। आज हम मस्जिदों की हालत देखिए, रमजान खत्म, सब चले गए, गायब। फजर पढ़ने मेरे शौहर गए थे अभी कुछ हफ्ते पहले, सिर्फ इमाम साहब थे और पीछे मेरे शौहर और एक और आदमी, और कोई है ही नहीं। ये मस्जिदों का हाल है। हम कोशिश करें कि हम अपने मर्दों को घर में से उठाए और भेजे मस्जिद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं उस घर को आग लगा दूं जहाँ पे मर्द घर में नमाज पढ़ते हो। कितनी बड़ी बात है कि उस घर को आग लग जाए जहाँ पे मर्द घर में नमाज पढ़ते। तो हम अपने शौहरों को मस्जिद की तरफ रवाना करें, जाओ पढ़ो, जाओ जाओ, कभी कुछ भी सर पे ही खड़े हो जाओ, है ना। अपने शौहरों को, भाइयों को, बेटों को दावत के काम में लगाएं, तबलीग में भेजें। 3 दिन लगाएं, 40 दिन लगाएं, जो भी 3 दिन से शुरू करें, 40 दिन से शुरू करें, 4 महीने भेजें, जैसे जैसे होता है, पर दीन में वक्त लगाए। जब तक दीन नहीं आएगा वो आपका एज अ मर्द वो आपकी बीवी के हुकूक को पूरा कर ही नहीं पाएगा, ना बच्चों के हुकूक को पूरा कर पाएगा। हमें इस दीन को कैसे फॉलो करना है, हमें अपनी आखिरत कैसी बनानी है। दुनिया तो खत्म हो जानी है और हमें भी खत्म। आज हमारी एज देखिए, हमें पता ही नहीं कि हम इस उम्र तक कैसे पहुंच गए। जो बची कुछ है वो भी फौरन खत्म हो जाएगी। तो बस हम ये कोशिश करें कि हम खैर के काम में अल्लाह हमें इस्तेमाल करे और हम खैर का काम करें, और नमाज को वक्त पे अदा करें, कुरान को खूब पढ़े और ऐसी तालीम में शामिल हो। आखिरी चीज़ बताऊंगी ये कि कहते हैं जो इंसान तालीम में आता है, एक आपा ने मुझे कहा था, मुझे इतना अच्छा लगा था, इसलिए मैं कभी भी कुछ होता है, कोई भी सिचुएशन होता है, मैं पहुंच जाती हूँ। चीज़ें सुनी नहीं सुनी, अमल किया नहीं किया, ये सब 2 नंबर की बात है। लेकिन सिर्फ घर से आपका तैयार होकर अपना हिजाब पहनकर यहाँ आना, क़यामत के दिन आपके लिए अर्श का साया तैयार कर दिया। तो ये कितनी अच्छी बात है। और हम कोशिश करें जब ऐसी मजलिस होती है, दीनी मजलिस, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने सारे फरिश्ते इधर भेज देते हैं। और अब आप लोग दिल में जो भी दुआ मांगोगे अपने लिए, उम्मत के लिए, घर वालों के लिए, आखिरत के लिए, उस सब दुआओं पे अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अच्छी अच्छी दुआएं मांगें, क्योंकि फरिश्ते हमारे आसपास हैं, हमारी हर दुआ पे आमीन कहते हुए। और यहाँ से नियत करें हम सब, मैं भी हर जगह जहाँ जाती हूँ, जहाँ भी मैं जो भी बोलती हूँ, मैं हमेशा उसके बाद दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे मेरी तौबा कबूल कर। हम सब यहाँ से तौबा करके निकले कि आज के बाद हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। जो भी हमारी ज़िंदगी में कमियां हैं, हम कोशिश करेंगे इस कमी को ख़त्म करें और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करें, ताकि अल्लाह की रज़ा वाली मौत हमें नसीब हो। और थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए। शब्बीर भाई का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, हमें दावत दी और हमें यहाँ पे बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे, मेरे बेटे को, मेरे घर वालों को, और आप सब भी मेरी दुआओं में हैं। अस्सलाम वालेकुम।